سب سے پہلے بات کریں پشاور میں تحریک انصاف کے کارکن مرزا آفریدی کو سینیٹر بنانے کے فیصلے کے خلاف ڈٹ گئے۔ کہتے ہیں عرفان سلیم کو بانی پی ٹی آئی نے سینیٹ کے لیے نامزد کیا تھا، سازش کے تحت لسٹ سے نام ہٹایا گیا، فیصلہ واپس نہیں لیا گیا تو سینیٹ الیکشن کے دن اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ پشاور سے عبدالقیوم آفریدی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ پی ٹی آئی پشاور کے ورکر اپنی ہی پارٹی کے فیصلوں کے خلاف بول پڑے۔ پریس کانفرنس میں کہا پشاور کے ضلعی صدر عرفان سلیم کو سینٹ الیکشن لسٹ سے ہٹا کر ارب پتی شخص کو آگے کر دیا۔ 9 مئی کی مذمت کرنے والے اے ٹی ایم کو ٹکٹ دینا پارٹی نظریے کے خلاف ہے۔ بیرسٹر سیف کی لسٹ کسی صورت منظور نہیں۔ دیرینہ کارکن عرفان سلیم اور عائشہ بانو اپنے کاغذات واپس نہیں لیں گے۔ ہمارے کارکنوں کے کینڈیڈیٹ عرفان سلیم کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ انشاءاللہ یہ کاغذ ہم واپس نہیں لیں گے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے کہا 9 مئی کے بعد بہت سے لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، لیکن عرفان سلیم چٹان کی طرح کڑے رہے۔ لیکن آج جب بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے تو عرفان سلیم کو سازش کے تحت سینٹ کے الیکشن سے باہر کیا گیا۔ ایسے شخص کو ان کی جگہ سینیٹر بنایا جا رہا ہے جو 9 مئی کی مذمت کر چکا ہے۔ اگر ہمارے ان مطالبات کو سیریس نہ لیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا، بالفرض یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا، یہ اسی طرح ڈھیٹ بن جاتے ہیں سب، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ کارکنوں نے کہا اگر سینٹ کی موجودہ لسٹ پر نظر ثانی اور عرفان سلیم کو شامل نہ کیا گیا تو پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے اور الیکشن کے روز اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عرفان سلیم کو ووٹ نہ دینے والے ایم پی ایز کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ کیمرامین مجاہد حسین کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ تحریک انصاف کی قیادت اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سینٹ امیدوار عرفان سلیم اور عائشہ بانو کو الیکشن سے دستبرداری پر راضی نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دونوں امیدواروں کے ساتھ پارٹی قیادت کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عرفان سلیم اور عائشہ بانو نے صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج رات 9 بجے ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا معاملہ پھر الجھ گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان امیدواروں کے بلا مقابلہ انتخاب کا معاہدہ طے پا گیا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے اپنی ہی صوبائی حکومت کے معاہدے کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں 13 میں سے 11 ارکان نے اپوزیشن کے ساتھ سینٹ نشستوں پر معاہدے کی مخالفت کر دی ہے۔ کمیٹی نے عرفان سلیم کے ٹکٹ کو بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ نشستوں کی بلا مقابلہ تقسیم پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق رائے ہو گیا۔ فارمولے کے تحت 11 نشستوں میں سے 6 حکومت اور 5 اپوزیشن کو ملیں گی۔ حکومت کو 4 جنرل، 1 خاتون اور 1 ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ملے گی۔ اپوزیشن کو 3 جنرل نشستوں کے علاوہ 1 خاتون اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ملے گی۔ معاہدے کے مطابق اپوزیشن کے 5 امیدوار طلحہ محمود، عطاء الحق درویش، روبینہ خالد، دلاور خان اور نیاز احمد بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کیے جائیں گے، جبکہ مراد سعید، فیصل جاوید، میراز آفریدی، نور الحق قادری، اعظم سواتی اور روبینہ ناز حکومتی سینیٹر ہوں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ کروانے کی مخالفت کر دی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں سے 13 میں سے 11 ارکان نے اپوزیشن کے ساتھ سینٹ نشستوں پر معاہدے کی مخالفت کر دی ہے۔ کمیٹی نے عرفان سلیم کے ٹکٹ کو بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں بڑا بریک تھرو۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر اپوزیشن نے معطل ارکان کی بحالی تک پنجاب اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ہدایات پر اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ریفرنس ڈراپ کرنے کا ڈرافٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی منظوری کے بعد جاری کر دیا جائے گا۔ اپوزیشن کے 26 اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے حکومتی اراکین نے اسپیکر کو درخواستیں دے رکھی تھیں۔ معطل اراکین کو بحال کرنے کا معاملہ اسپیکر کے بیرون ملک سے واپسی پر کیا جائے گا۔ ادھر اپوزیشن نے معطل اراکین کی بحالی تک پنجاب اسمبلی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بشر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا معطل اراکین کی واپسی تک اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ پنجاب کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔
वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदरफ्त होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, शिपिंग सेक्टर और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इस्लाहात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत समुद्री अमूर और PNSC को असर नो इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज अवामी खिदमत के मायार से हम आहंग करना ज़रूरी है। हालिया दिनों में रिकॉर्ड बारिशें हुई। मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों में नुकसानात कम हुए। चावल और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू, पुलिस और तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। ज़रूरत पड़ने पर अफवाज ने भी रेस्क्यू का बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि PTMA डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाश देना चाहती हूँ। बारिशों का नया स्पेल 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। बारिशों के नए मुमकिना सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। इंतजामी अफसरान दफातर की बजाय फील्ड पर मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब की PTMA हेड क्वार्टर्स आमद। मरीम नवाज को सूबे भर में बारिश और सैलाबी रेलों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अर्ली वार्निंग जो है वो उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रखना चाहिए। मुझे नज़र आना चाहिए कि आप आवाम से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने 144 जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। तो 144 का मतलब ये नहीं कि आपने इम्प्लीमेंट कर दी और आप घर पे बैठ जाए। वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी विजिलेंस होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी सुपरविजन होनी चाहिए। रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, लेकिन डैमेज अल्लाह का शुक्र है कम है। उसकी वजह यह है कि प्रिपेयर्डनेस बेहतर थी और पिछले पूरे 1 साल से इस पे काम हो रहा है। तो मैं PDMA को भी शाबाश देना चाहती हूँ। मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। एंड जो हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहाँ पर हमें फौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई है। PTMA पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। जबकि तर्जुमान PTMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, झंग, सरगोदा और मियावाली में बारिशों के इम्कानात हैं। 18 जुलाई से 23 जुलाई तक जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बारिश हो सकती है। मेयर कराची का मानसून के नए स्पेल की पेशगोई के बाद शहर के नालों का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जहरी नाले और वारिस शाह नाले का मुआयना किया है। मेयर कराची की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर नालों की सफाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि मेयर कराची का मानसून के नए स्पेल की पेशगोई के बाद शहर के नालों का दौरा, और इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, अपडेट कीजिएगा, मेयर ने दौरा किया है मुख्तलिफ नालों का? देखिए, मेयर कराची ने मानसून के नए स्पेल की पेशगोई पर जो है वो मुख्तलिफ नालों का दौरा किया है। दौरों में जो है जहरी नाला की जो जगह थी उसे साफ करवाया गया है। मुख्तलिफ नाले इस वक्त भी जो है वो सफाई के मुंतज़िर हैं। अब मुतादिद नालों में जो है वो सिरे से सफाई की नहीं गई है। लियारी का नाला है, इसी तरह से गुज्जर नाला है, और जो गली मोहल्लों के नाले हैं जिस पर मेयर कराची ने तमाम जो पंचायती नुमाइंदे हैं उनसे भी ये दरख्वास्त की थी कि अपने अपने इलाकों के जो नाले हैं उन्हें साफ करवाया जाए, क्योंकि वही एक बेहतरीन इंतजाम है जो इलाके के पानी को बड़े नालों तक मुंतकिल करते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। हमारी जड़ें मुश्तरका तारीख और सकाफत में पेवस्त हैं। बांग्लादेश की गारमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस और विमेन वर्क फोर्स में कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान से मुलाकात में गुफ्तगू। 2 तरफा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने मरीम नवाज के अवामी और फलाही इक़दामात और तरक्याती प्रोग्राम्स को सराहा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि PTI पहले 5 अगस्त की तैयारियां करे, फिर हम करेंगे। सोशल मीडिया पर फ्लाई ओवर्स पर गैर ज़रूरी तनकीद की जा रही है। FC की मराआत, तनख्वाहों और शोहदा पैकेज में इजाफा किया गया। ईरान में 10 रोज़ में 3 लाख अफगानियों को मुल्क से बाहर निकाला गया। हम सिर्फ अफगानियों को नहीं निकाल रहे, हर वो शख्स जिसके पास वीज़ा नहीं होगा उसको मुल्क बदर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का बीट रिपोर्टर से मुलाकात में मज़ीद क्या कहना था ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दोबारा बताते चले कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि PTI पहले 5 अगस्त की तैयारियां करे, फिर हम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का बीट रिपोर्टर से मुलाकात में मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा न्यू राना उस्मान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला बीट रिपोर्टर से मुलाकात की और मुलाकात में जब उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए और कहा कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जो है वो एहतजाज की तैयारियां कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तहरीक इंसाफ तैयारियां करे, उसके बाद हम तैयारियां करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि FC को B क्लास फोर्स समझा जाता था। FC की मरात, तनख्वाहें और शोहदा पैकेज जो है उसमें इजाफा किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि गैर कानूनी रहायश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और वीज़ा रखने वालों को किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जा रही। उनसे ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी कॉल सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं और स्कैम करते हैं शहरियों के साथ। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अफ़ाम व तफ़हीम से सेनेट के इंतखाबी अमल पर उंगलियां नहीं उठती, पैसे का लेन देन नहीं होता। इस अमल से ऐवान बाला का तकद्दुस भी बरकरार रहता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये एक अच्छी रिवायत चली है कि इत्तफाक़ राय से नाम आ रहे हैं। जब मैं पंजाब से आया था तो उस वक्त भी इंतखाबी अमल की नौबत नहीं आई थी। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाएं और ये अच्छा अमल है। हैदराबाद में पाकिस्तान में पहले नौज़ायदा बच्चे की डिजिटल रजिस्ट्रेशन। शहरी शुमारियाती निज़ाम में नॉर्थ रजिस्ट्रेशन टूल के ज़रिए बच्चे की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। मेसम अब्बास की रजिस्ट्रेशन नादरा के जदीद टूल के ज़रिए की गई। कासिमाबाद के सरकारी अस्पताल में पहली डिजिटल रजिस्ट्रेशन की गई। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि हैदराबाद में पाकिस्तान में पहले नौज़ायदा बच्चे की डिजिटल रजिस्ट्रेशन की गई है। शहरी शुमारियाती निज़ाम में नॉर्थ रजिस्ट्रेशन टूल के ज़रिए बच्चे की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। डिस्कोस को ट्रांसफार्मर मटीरियल की सप्लाई के टेंडर्स में मुबैना गठजोड़। कॉम्पिटिशन कमीशन ने लेस्को की शिकायत पर इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, जबकि ट्रांसफार्मर सप्लायर्स के दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर और गुजरावाला में बैक वक्त छापे मारे गए। कार्टेल या गठजोड़ के मुसद्दका इत्तला देने पर 2 से 20 लाख रुपए तक इनाम भी मुकर्रर कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।